Okay. Now here in linear regression, we have seen the equation of line as y is equal to beta 0 plus beta 1 x, and we got the beta 0 value as y bar minus beta 1 x and beta 1 value as this equation. Okay. Now what we have with us, we have the x and y values. Okay. X and y values. So x value is 1 2 3 4 5 and y value is 2 4 5 4 5. Okay. Now here, what is our aim? We have to find the equation of regression line. Regression line का हमें क्या find out करना है? Equation find out करना है. तो equation find out करने के लिए we must find out the values of beta 0 and beta 1. Beta 0 and beta 1 के values हमें पता होने चाहिए. So how we can find out it? We can find out it with these equations. Okay. Now here, first of all, we need to calculate y bar and x bar. Y bar is nothing but your y mean, and x bar is nothing but the x mean. Okay. Now here, what we have to do, we will find out the mean of all these values. Mean of this means average of this. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 divided by 3. So the value is 3 here. Next, for y also we have to find out the y bar value. 2 4 5 4 5. So perform the addition and then divide by 5 because 5 number of values are there. So I have taken here average of these values. Okay. Now next, we will find out x minus x average. Now what is the value of x? X value is 1 and x average value is 3. So 1 minus 3, it gets minus 2. 2 minus 3, minus 1. 3 minus 3, 0. 4 minus 3, it is 1. 5 minus 3, it is 2. Same for y average, y minus y average. Okay, 2 minus 4, minus 2. 4 minus 4, 0. 5 minus 4, 1. 4 minus 4, 0. 5 minus 4, 1. Okay, now perform the multiplication. Why we are doing this? To find the value of beta 1. ये हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? To find the value of beta 1. ठीक है. Now यहाँ पे हम क्या करेंगे? X minus x average multiplied with y minus y average. That means इन दोनों values की क्या हो जाएगी? Multiplication. तो हर एक इसकी multiplication होने के बाद हमें ये result मिलेगा. ठीक है. Same. अभी हमें डिनोमिनेटर का क्या करना है? xi minus x bar square. उसका स्क्वायर करना है. ये जो वैल्यू मिली है उसका स्क्वायर करना है. इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है? स्क्वायर. -2 into -2 which is 4 1 0 1 4. ओके, दीज आर दी वैल्यूज. लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? समेशन दिया है. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसका समेशन परफॉर्म करेंगे. तो सम ऑफ दीज वैल्यूज, सम ऑफ these values. Okay, it is 6. Then next, x minus x average, इसका स्क्वायर. तो इसका भी क्या करना है? हमें समेशन परफॉर्म करना है. और इसका समेशन क्या आता है? इट इज 10. ओके, नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज 6, डिनोमिनेटर इज 10. सो बीटा 1 वैल्यू इज 6 by 10 which is nothing but 0.6. now we have the value of beta 1. हमारे पास क्या है? बीटा 1 की वैल्यू है. बीटा 1 की वैल्यू है. देन वी कैन इजीली फाइंड आउट बीटा 0 वैल्यू. बीटा 0 का इक्वेशन क्या है? y बार माइनस बीटा 1 x. ओके, y बार की वैल्यू क्या है? 4. 4 माइनस बीटा 1 क्या है? बीटा 1 इज 0.6 इंटू 3. ओके, इसका आंसर क्या आता है? 2.2. तो मैंने यहाँ पे एक्सेल में ही वो कैलकुलेशन किए हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x. सो y इज इक्वल टू बीटा 0 की वैल्यू क्या है? 2.2 प्लस बीटा 1 की वैल्यू क्या है? 0.6. सो इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन इज y इज इक्वल टू 2.2 प्लस 0.6 x. ओके, नाउ ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया. नाउ यहाँ पे हमने क्या किया है? इसका अगर ग्राफ निकालते हैं y वर्सेस x का, तो ये हमारे पास क्या है? स्कैटर्ड पॉइंट्स. और हमारे पास अभी क्या है? वी हैव द इक्वेशन ऑफ लाइन. लाइन रिग्रेशन लाइन का हमारे पास क्या है? इक्वेशन.
सो विल फाइंड आउट द प्रेडिक्टेड y हियर। हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? प्रेडिक्टेड y फाइंड आउट करने वाले हैं। तो प्रेडिक्टेड y फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या है? तो वी हैव द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो x के वैल्यूज भी हमें पता है, x वैल्यूज आर 1 2 3 4 5। तो सिर्फ इस इक्वेशन में क्या करना है? वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड we get the result as 2.8, 3.4, 4, 4.6 and 5.2। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड ग्राफ है that is for x and predicted y। predicted y is with the help of this equation, with the help of this equation। ये इक्वेशन से हमें क्या मिला है? predicted y मिला। और अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो that graph will draw a line। ठीक है, now this is the example। ये क्या है? एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ फॉर दिस एग्जाम्पल हाउ वी कैन शो इट इन आर प्रोग्रामिंग। आर प्रोग्रामिंग में कैसे दिखा सकते हैं ये? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फर्स्ट डिफाइन द क्लास फॉर फर्स्ट वैल्यूज। एक्स वैल्यूज क्या थे हमारे? 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्स डिफाइन कर लिया। नाउ वी विल डिफाइन वाई। अभी हमें क्या डिफाइन करना है? वाई का क्लास डिफाइन करना है। y के वैल्यूज क्या थे? 2 4 5 2 4 5 4 5। ओके, 2 4 5 4 5 ये क्या है? y के वैल्यूज। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है? वी विल क्रिएट टेबल। विच टेबल? टेबल ऑफ x एंड y वैल्यूज। तो हम टेबल क्रिएट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? अभी we have seen the example of linear regression। ये किसका एग्जाम्पल था? linear regression का एग्जाम्पल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? we will form the table with the help of data dot frame। data dot frame से हम क्या करेंगे? टेबल फॉर्म करेंगे। कौन सा टेबल फॉर्म करना है? x and y वैल्यूज का टेबल फॉर्म करेंगे। ओके, now we will create the model for this। so lr model is lm। okay, it is lr की कौन सी वैल्यू लेनी है? lr वैल्यू एज y with tilde sign। okay, again lr डॉलर से क्या आता है? lr क्या है? एक टेबल है। डॉलर से क्या आता है? उसके एट्रीब्यूट्स है। सो lr मॉडल lm, specifically lm command will create the model with respect to y value and x value। okay, now model is created and it is stored in lr model। now अगर हमें ये मॉडल देखना है तो उसके लिए क्या कमांड है? summary lr model। lr मॉडल ये कौन सा वेरिएबल है? जहां पे हमने मॉडल क्रिएट किया। ठीक है, तो ये मॉडल क्रिएट हो गया। नाउ यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, नाउ दीज आर दी वैल्यूज 2.2 एंड 0.6 जो हमारे कहाँ पे आए थे? 2.2 एंड 0.6। ये दोनों वैल्यूज हमारे क्या हुए? यहाँ पे मैच हो गए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे हमने क्या किया है? वी हैव क्रिएटेड वन क्लास फॉर x और सिंपल array for x, then array for y, then we have formed the table। यहाँ पे क्या फॉर्म किया है? टेबल फॉर्म किया है। ठीक है, नाउ टेबल फॉर्म करने के बाद we have formed the table। नाउ टेबल फॉर्म करने के बाद हमें क्या करना है? y and x का मॉडल क्रिएट करना है। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए कमांड कौन सी है? lm। स्क्रिप्ट क्या है? lm। ठीक है, lm मॉडल लीनियर मॉडल क्रिएट करना है। लेकिन कौन से इससे लीनियर मॉडल क्रिएट करना है? कौन से टेबल में से? तो lr टेबल में से। lr टेबल में से कौन सा एट्रीब्यूट लेना है? y and x एट्रीब्यूट। ओके, नाउ ये हो गया हमारा जो डेटा था, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसका मॉडल क्रिएट हो गया। उसके हिसाब से हमने क्या किए हैं? बीटा 0 बीटा 1 के वैल्यूज फाइंड आउट किए। ओके, नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है? नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेडिक्टेड y। इट इज द वेरिएबल नेम। ये क्या है? यूजर डिफाइंड वेरिएबल नेम।
प्रेडिक्टेड वाई तो इसके लिए क्या है, प्रेडिक्ट, क्या प्रेडिक्ट करना है, कौन सा ये करना है प्रेडिक्ट, एलआर मॉडल का यू जो है वो प्रेडिक्ट करना है। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे प्रेडिक्टेड वाई प्रिंट करती हूँ तो प्रेडिक्टेड वाई क्या है, 1 2 3 4 5, ये एक्स के वैल्यूज है और y के वैल्यूज क्या है, 2.8 3.4 4.0 4.6 5.2। तो यहाँ पे हम मैच करेंगे whether predicted y is right or not, 2.8 3.4 4 4.6 and 5.2। ठीक है, ये वही वैल्यूज आ गए यहाँ पे प्रेडिक्टेड y में। नाउ हमें क्या करना है, वी विल प्लॉट ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू y। ग्राफ प्लॉट करना है, उसके लिए कमांड है प्लॉट। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ये ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, मॉडल का क्या है, टेबल में से कौन सा फील्ड हमने लिया है, y फील्ड लिया। ठीक है, नाउ ये किसके लिए है, एक्चुअल जो वैल्यूज है उसका ग्राफ प्लॉट हो गया। एक्चुअल वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 2 4 5 4 5 2 4 5 4 5, इसके लिए क्या हो गया, ये ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, इस ग्राफ के लिए रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करनी। तो रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करने के लिए आता है एल ए बी लाइन, इसके लिए आता है ए बी लाइन। रिग्रेशन लाइन किसकी ड्रॉ करनी है, मॉडल की। ठीक है, तो ये रिग्रेशन लाइन क्या आ गई, यहाँ पे आ गई। ठीक है, रिग्रेशन लाइन यहाँ पे आ गई। नाउ हमें क्या करना है, वी हैव टू पॉइंट इन द सेम ग्राफ, हमें क्या करना है, वी विल पॉइंट, वी विल आइडेंटिफाई द पॉइंट्स विच आर यूज्ड बाय प्रेडिक्टेड वाई। प्रेडिक्टेड वाई के भी क्या चाहिए, हमें पॉइंट्स चाहिए। विल सेट द कलर, कलर अगर हम सेट करते हैं यहाँ पे ब्लू। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लू कलर के जो सर्कल्स दिख रहे हैं, दैट आर नथिंग बट योर प्रेडिक्टेड वाई। प्रेडिक्टेड वाई समझ में आ रहा है कि आपको, हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस मैम। ओके, सिंपल सिंपल है। क्या किया हमने यहाँ पे, वी हैव क्रिएटेड एक्स array y array, एक्स array y array क्रिएट किया। ठीक है, फिर x एंड y का क्या किया है, टेबल किया है। तो x एंड y का टेबल इज नॉट ओनली नॉट नेसेसरी, हमें क्या करना है, मॉडल क्रिएट करना है। y टू द x का हमें क्या करना है, मॉडल क्रिएट करना है। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए व्हाट इज द स्क्रिप्ट, lm, क्या है स्क्रिप्ट में, lm है, लीनियर मॉडल। ठीक है, LR मॉडल क्या है, इट इज अ यूजर डिफाइंड वेरिएबल। ठीक है, तो LM और कौन सा लीनियर मॉडल क्रिएट करना है हमें, y टू द x। लेकिन y और x कहाँ पे प्रेजेंट है, तो LR में प्रेजेंट है, इसीलिए LR डॉलर। डॉलर मतलब क्या, डॉलर देके हमें क्या मिलता है, टेबल के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। इफ देर आर n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो डॉलर लिखने के बाद, अगर मैं यहाँ पे ऐसा डॉलर लिखने के बाद क्या आएगा, उसकी पूरी लिस्ट आएगी। ठीक है, देन वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट विच एट्रीब्यूट वी वांट। ठीक है, ये हो गया y टू द x। अभी LR मॉडल हमने क्रिएट किया, लेकिन उसका क्या देखना, हमें LR मॉडल क्या है वो देखना है। तो देखने के लिए है कमांड है समरी LR मॉडल। ठीक है, नाउ यहाँ पे समरी LR मॉडल में से हमें क्या मिला, वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा 0 एंड बीटा 1। तो बीटा 0 एंड बीटा 1, बीटा 0 इंटरसेप्ट एंड बीटा 1 इज स्लोप। ओके, नाउ जो स्लोप और इंटरसेप्ट है उसके वैल्यूज हमें मिल गए 2.2 एंड 0.6 एंड इट इज मैचिंग विथ आवर वैल्यूज, दैट इज 2.2 एंड 0.6। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया था, प्रेडिक्टेड वाई फाइंड आउट किया था। तो सिमिलर वे हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, प्रेडिक्टेड वैल्यूज क्या आते हैं,
लेकिन मॉडल क्या है हमारे पास, जो पुराना वाला मॉडल है LR मॉडल वही यूज करना है। तो इसका प्रेडिक्शन यहाँ पे आता है, प्रेडिक्टेड y इज इक्वल टू, दिस इज अगेन यूजर डिफाइंड वेरिएबल, ये क्या है, दिस इज पार्ट ऑफ सिंटैक्स, प्रेडिक्ट ये कीवर्ड क्या है, सिंटैक्स का पार्ट है, प्रेडिक्ट LR मॉडल। तो प्रेडिक्टेड y में क्या आता है ये देखना है, तो प्रेडिक्टेड y हमने सिंपली यहाँ पे लिख दिया, तो प्रेडिक्टेड y में है 1 2 3 4 5 और y के प्रेडिक्टेड वैल्यूज 2.8 3.4 4.0 एंड 4.6 5. तो दीज वैल्यूज आर मैचिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पे x की जगह पे क्या डाला है 1 2 3 4 5 एंड वी गॉट दीज वैल्यूज। ओके, अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो ग्राफ प्लॉट करना है मतलब क्या, यहाँ पे क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। तो ये व्हाइट, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, दीज डॉट्स आर विदाउट प्रेडिक्शन, मतलब जो डेटा यहाँ पे दिया है इस डेटा के वो क्या है, डॉट्स है, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, विद दैट डॉट्स ओनली वी हैव टू प्लॉट द रिग्रेशन लाइन इन द ग्राफ। तो रिग्रेशन लाइन प्रिंट करने के लिए है AB लाइन, हमें क्या यूज करना है, AB लाइन। AB लाइन किसके लिए यूज करना है, LR मॉडल के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है AB लाइन LR मॉडल, AB लाइन LR मॉडल, ओके। और अभी हमें क्या करना है, प्रेडिक्टेड बाय कहाँ पे आता है, वेदर इट लाइज ऑन द लाइन और नॉट, तो ये हमें डिफरेंशिएट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कलर दे दिया ब्लू, ओके। एंड वो पॉइंट ड्रॉ करने के लिए क्या है, क्या यूज करना, हमें पॉइंट्स यूज करना है, पॉइंट्स प्रेडिक्टेड बाय कलर इज इक्वल टू ब्लू। नाउ यहाँ पे अगर आप ये ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, ये अगर आप ऑब्जर्व करते हो, दैट मीन्स दिस इज द एरर विच इज प्रेजेंट हियर। एरर कितना है, ये पॉइंट यहाँ पे था एक्चुअल, लेकिन प्रेडिक्टेड कहाँ पे हुआ, यहाँ पे है। सो दिस इज नथिंग बट योर एरर वैल्यू। फॉर सेकेंड पॉइंट ऑल्सो, actual y is here but predicted y is here, so this is again the error value, this is plus error value, this is minus error value, ये क्या है, माइनस एरर वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट फॉर थर्ड पॉइंट ऑल्सो प्लस एरर वैल्यू इज देयर, फॉर फोर्थ पॉइंट नेगेटिव एरर वैल्यू इज देयर, फॉर 5.2 इट इज एक्चुअली 5.2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगेन नेगेटिव एरर वैल्यू इज देयर, ओके। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि एरर वैल्यू कहाँ कैसे आती है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर एरर, व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड SSE, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, ओके। अंडरस्टूड अप टू दिस, यहाँ तक समझ में आया। Data size and bias variance trade-off. Apply the cross validation and plot the graphs for errors. Then apply the subset selection method and plot the graph for errors. Describe your findings in each case. तो हमें क्या करना है यहाँ पे, we will use some another data set. हमने पहले यहाँ पे सिंपल हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो प्रॉब्लम का हमने देखा कि हमारे वैल्यूज करेक्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई होते हैं क्या विद द हेल्प ऑफ R। तो हमें अभी क्या करना है, व्हाट इज आवर नेक्स्ट एम, वी हैव टू इम्प्लीमेंट सुपरवाइज लर्निंग, दैट इज रिग्रेशन फॉर द 2D डेटा सेट ऑफ endpoints, ठीक है। अगेन वी आर गोइंग टू यूज इनबिल्ट डेटा सेट विच इज कार्स डेटा सेट, ओके। लेकिन कार्स डेटा सेट में क्या है, तो वो अगर हमें देखना है, सो एट दैट टाइम वी विल यूज कमांड एज व्यू कार्स, ठीक है। तो कार्स में क्या है, कार्स हैज ओनली 2 एट्रीब्यूट्स, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे असाइनमेंट टाइटल में भी वही दिया है, जनरेट प्रॉपर 2D डेटा सेट ऑफ endpoints, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2D डेटा सेट ही लिया हमने which has only 2 dimensions and that dimensions are speed and distance, okay। now हमें क्या करना है, ये क्या है, कार डेटा सेट है, इसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, 50 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। और हर एक रिकॉर्ड के लिए क्या है, अलग अलग वैल्यूज।
तो ये डेटा सेट हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले। तो ये डेटा सेट मैंने कैसे देखा, बाय यूजिंग व्यू कार्स। ओके, नाउ we will use set dot sit. Now what is the use of set dot sit? तो सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास रैंडम फंक्शन रहता है, ठीक है। नाउ असाइनमेंट टाइटल क्या है, वी हैव टू स्प्लिट द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग डेटा सेट एंड टेस्ट डेटा सेट। हमें क्या करना है, डेटा सेट क्या करना है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट में स्प्लिट करना है। तो कैसे स्प्लिट करेंगे हम, तो इट इज विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर जनरेशन, ठीक है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आर में क्या है, सेट डॉट सिट, ठीक है। सेट डॉट सिट में मैंने लिमिट दे दिया 100। मुझे क्या करना है, आई हैव टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स। तो इसके लिए मैंने यूज किया है सेट डॉट सिट। और इसके बाद तुरंत बाद अगर आप सैंपल फंक्शन यूज करते हैं, सैंपल इज द फंक्शन नेम, सैंपल फंक्शन यूज करते हैं, that means if I use sample function after sit, then I will always get the same sample, same result. Always मुझे क्या मिलेगा, same result मिलेगा। जैसे C के रैंडम के केस में क्या होता था, C रैंडम नंबर जनरेशन के केस में कि हर टाइम अलग अलग मिलते थे। तो सेट डॉट सीड से अगर इमीडिएटली हम यहाँ पे सैंपल फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हर टाइम मुझे क्या मिलेगा, एवरी टाइम आई विल गेट the same samples. Okay, now here car data, कार्स का जो डेटा सेट है वो मैंने कहाँ पे डाल दिया है, कार डेटा में। नाउ यहाँ पे मैं करूंगी व्यू कार डेटा, ठीक है। मतलब कार डेटा में ये सब आ गया, 50 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कहाँ पे आ गए, अभी कार डेटा में। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया है, कार डेटा सेट लिया, उससे क्या किया है, रैंडम नंबर जनरेशन किए हैं। कार्स डेटा सेट मैंने कहाँ पे डाला है, कार डेटा में डाला है, और मैंने देखा कि सच में कार डेटा में सब वैल्यूज गए कि नहीं गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम क्या जनरेट करने वाले हैं, कार इंडेक्स। कार इंडेक्स किसके लिए जनरेट करेंगे, फॉर जो हमने रैंडम नंबर जनरेट किए थे उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कार इंडेक्स जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या करना है, एन रो ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट और सैंपल वेक्टर जो है वो सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी हैव यूज्ड द सैंपल फंक्शन। ओके, सैंपल फंक्शन में हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक एज divide the data into percentage which is 70%। 70% कहाँ से आया, मल्टीप्लाइड बाय 0.7 किया, ठीक है। अभी सैंपल फंक्शन जैसे मैंने बोला था कि सीड के बाद अगर आप तुरंत सैंपल फंक्शन यूज करते हो तो हर टाइम वो क्या रहेगा, जो रैंडम नंबर जनरेट हुए हैं हर टाइम सेम सैंपल मिलेगा, ठीक है। ये हो गया सैंपल क्रिएट कर लिए, दैट मीन्स वी हैव टू सिलेक्ट द सैंपल वेक्टर। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, ट्रेंड। अभी हमें क्या डिफाइन करने हैं, वी हैव टू डिफाइन द ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट। ट्रेन सेट और टेस्ट सेट किसके लिए यूज करना है, कार इंडेक्स का, ठीक है। कार इंडेक्स में क्या आ गया था हमारा, ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट सेट। टेस्ट के लिए अगेन विल यूज कार डेटा, और यहाँ पे ट्रेन के लिए जितने इंडाइसेस यूज हुए हैं उसके जो बाकी इंडाइसेस है वो सब कहाँ पे आने चाहिए, टेस्ट में आने चाहिए। सो आई विल यूज हियर माइनस कार इंडेक्स, ठीक है। अंडरस्टूड अप टू दिस, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया क्या, हैव यू अंडरस्टूड अप टू दिस।
समझ में आया क्या यहाँ तक? यस मैम। ओके, नेक्स्ट। तो अब तक हमने क्या किया? सिर्फ कास्ट डेटा सेट लिया, उसको रैंडम नंबर जनरेट किए हैं, मतलब इंडेक्स के लिए रैंडम नंबर जनरेट किए हैं। कितने इंडाइसेस है? 1 to 50 इंडाइसेस है, ठीक है। देन इंडेक्स कहाँ से जनरेट होता है? सैंपल फंक्शन से। सैंपल फंक्शन कहाँ पे, सैंपल फंक्शन का रिजल्ट कहाँ पे स्टोर किया? कार इंडेक्स में स्टोर किया। देन वी हैव टू डिवाइड इंडाइसेस टू द ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट। तो ट्रेनिंग सेट के लिए क्या किया मैंने? कार इंडेक्स के वैल्यूज ले लिए और रिमेनिंग वैल्यूज कहाँ पे आने चाहिए? टेस्ट में आने चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया है? टेस्ट इज इक्वल टू कार डेटा माइनस कार इंडेक्सेस। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? रिमेनिंग इंडेक्सेस मिलेगा। मतलब अब तक हमने क्या किया है असाइनमेंट के लिए? वी हैव क्रिएटेड जनरेटेड द 2D data set of n points. Okay, split that data set into the training and testing set. ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में मैंने क्या किया है? ये डेटा सेट डिवाइड किया है। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यू हैव टू परफॉर्म द लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस विद द लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड से मुझे क्या करना है? लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ lm mod. ओके, it is again user defined variable. So for performing linear regression analysis with the least square method, क्या है हमारे पास? lm है, जो हमने पहले भी एग्जांपल में यूज किया था। और अभी यहाँ पे क्या है? स्पीड एंड डिस्टेंस। तो y का x से हम क्या करते हैं? y का x से हम क्या करते हैं? लीनियर मॉडल बनाना है हमें। तो y क्या है हमारे केस में? डिस्टेंस। x क्या है? स्पीड। x क्या है? स्पीड। ओके, एंड कौन से इस पे करना है? डेटा कौन सा लेना है? तो डेटा ट्रेनिंग डेटा लेना। ओके, डेटा इज ट्रेन। ट्रेन कहाँ से आया? यहाँ से आया ट्रेन, ट्रेनिंग डेटा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट एरर इन टेस्टिंग डेटा। तो टी मतलब क्या? टेस्टिंग डेटा। तो एरर इन टेस्टिंग डेटा इज इक्वल टू प्रेडिक्ट। हम क्या करेंगे यहाँ पे? प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट क्या है? मॉडल कौन सा हमें? lm mod, ठीक है, मॉडल ये है। और प्रेडिक्टेड कहाँ पे आएगा? टेस्टिंग डेटा में आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एरर? क्योंकि ये ट्रेन डेटा है, पी एरर। टेस्टिंग का क्या है? एरर फाइंड आउट करना है। तो एरर फाइंड आउट करने के लिए है अगेन दिस t predicted distance, te error, these are user defined variables. ये क्या है? यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स है, ठीक है। te predicted distance minus test डिस्टेंस। तो यहाँ पे एरर कैसे फाइंड आउट किया है? जैसे मैंने बोला था एरर, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरर? y माइनस वाई कैप, और उसका हमने क्या किया था? स्क्वायर किया था। तो हमने यहाँ पे एरर फाइंड आउट किया। एरर क्या है? टी प्रेडिक्टेड डिस्टेंस माइनस टी प्रेडिक्टेड डिस्टेंस और माइनस क्या है? टेस्ट डिस्टेंस, मतलब y माइनस वाई कैप, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या करना है? उसका क्या करते थे हम? स्क्वायर करते थे। तो टी स्क्वायर एरर, ये मैंने पहले भी परफॉर्म करके देखा है, इसके लिए मुझे क्या रहे? रेडीमेड वो वेरिएबल नेम सर। टी स्क्वायर एरर इज टी एरर इनटू अगेन टी एरर। ओके, नाउ less than 5 minutes are remaining. So can all of you join for 5 minutes again? 5 मिनट के लिए फिर से ज्वाइन करोगे क्या? मतलब ये खत्म हो जाएगा।
TEMSE is equal to mean of TE square error। कि हमने क्या किया है, टेस्ट डेटा का एरर, टेस्टिंग डेटा का क्या फाइंड आउट किया है, एरर फाइंड आउट किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, प्रेडिक्टेड का एरर फाइंड आउट करना। ठीक है, प्रेडिक्टेड का एरर फिर से सेम कमांड्स रहेंगे, प्रेडिक्ट ln mod string। ठीक है, PR error is equal to TR predicted list, predicted distance minus trend dollar distance। ये क्या है हमारा y वेरिएबल। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे TR स्क्वायर एरर, TR स्क्वायर एरर, उसका क्या करने वाले हम, स्क्वायर करने वाले। तो इट इज नथिंग बट TR एरर इनटू TR एरर। अगर टाइम खत्म होता है तो फिर से 2 मिनट के लिए सिर्फ ज्वाइन करो। ओके, TRMSE, क्या ये ट्रेनिंग सेट का एरर क्या है। ठीक है, मीन ऑफ TR स्क्वायर एरर। तो मैंने लिया स्मॉल r, स्मॉल TR, स्मॉल TR ही लेना है यहाँ। ठीक है, नाउ यहाँ से हमें क्या करना है, विल प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने क्या बोला है, क्या क्या यूज करना है, हमें प्लॉट कमांड यूज करनी है, TE प्रेडिक्टेड डिस्टेंस। इसका क्या करेंगे हम, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो TE प्रेडिक्टेड डिस्टेंस का ये ग्राफ आता है। ठीक है, नाउ हमें क्या करने हैं, पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, किसके, टेस्ट के। टेस्ट डिस्टेंस। ओके, अगेन कलर इज इक्वल टू, मैं फिर से यहाँ पे ब्लू कलर देती हूँ, ब्लू। ठीक है, टेस्ट डेटा सेट के कहाँ पे आ गए, प्रेडिक्टेड क्या थे, ऐसे थे। टेस्ट डेटा सेट के पॉइंट्स कहाँ पे आ गए, ऐसे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ प्लॉट, ये फर्स्ट था टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अभी क्या है, ट्रेनिंग के लिए, TR प्रेडिक्टेड डिस्टेंस। ट्रेनिंग डेटा के लिए ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, देन पॉइंट्स ओके। ये होने के बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे मैंने 0.7 यूज किए हैं। ठीक है, 0.7 यूज किए हैं, तो आपको यहाँ पे यूज करना है 0.8, 0.6 एंड देन यू हैव टू एनालाइज व्हाट इज द